Hello, dear viewers. This is Meenakshi Narula, and I welcome you to my channel, Mentoring the Mentors. My dear students, my dear teachers, whosoever is watching this video, please make sure you watch it very carefully, jot down the important points because tomorrow you're going to have the board exam, the first board exam for 12th standard for 24. Yes, my dear, tomorrow is the entrepreneurship exam for 12th standard, and very soon in the next week, we will be beginning with the board exams for 10th standard as well. So CBSE has shared certain important instructions, public advisories with all of us through its various circulars and notifications, and as well as some of the important instructions, they are mentioned on the students' admit cards as well. Make sure you read those instructions and follow the same. So let's go ahead with it. The first and very important point for all of us, like the admit card, it looks like this, right? That has been given to us. So you have to make sure the correctness of the details and the subjects that are mentioned in the admit card. Like your all subjects should be mentioned properly over there. There have been several rumors. I have been even reading them out on this social media platforms, or again and again I was getting notifications as well. Somewhere it is written कि कहीं पर किसी का subject गलत है, ये है वो है. I do not know what's the truth about it. आपको ये अपना देखना है, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी स्ट्रीम, आपके सब्जेक्ट प्रॉपर मेंशन हो, सारी डिटेल्स, आपके नेम, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली मेंशन. ये आपको इंश्योर करना है, राइट? ये बहुत ही जरूरी है. और इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, यू नो वेरी वेल, टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन हॉल में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और पहले आप वहां पर टाइम से पहुंचेंगे, ये और भी उससे जरूरी है. यू नो 10:30 AM as per Indian standard timings, your exam will begin. एंड आपकी जो एंट्री है 10 बजे के बाद परमिटेड नहीं होगी. आपको 10 बजे एंट्री वहां पर मिलेगी. 10 बजे से पहले रादर आप पहुंचिए, मे बी एट 9:45, 9:30 अराउंड यू हैव टू बी देयर at your exam center at your venue. So आपका 10:30 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा. So to confirm the time and the date of the examination, please make sure you refer to the date sheet, that is a timetable shared with you by CBSE. कैंडिडेट को बाद में अलाउड नहीं होगा जाना, एंटर करना, परमिशन नहीं मिलेगी. एंड आप ये सोचो कि आपका एग्जाम पहले ओवर हो गया 2 घंटे में, यू कैन लीव द एग्जाम हॉल. नो, यू कैन नॉट लीव द एग्जाम हॉल. No candidate shall be allowed to leave the examination center before the exam is over. आपका 3 hours का writing time है, उसके बाद ही आपका एग्जाम ओवर होगा, and only then all the students can leave the exam center. So make sure आपके पास टाइम है तो उसको यूज करें प्रॉपरली, डिवाइड करें. हर सेक्शन के लिए अपना टाइम सोचकर जाएं कि आपको एमसीक्यूज यानी असर्शन रीजन, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, आपको किसने कितना कितना टाइम आपको डिवोट करना है. What I have been doing, that I have shared with my even students too, कि आप लोग अपने क्वेश्चंस के लिए डिवोट करें टाइम, कि मुझे इसमें इतने पॉइंट देने हैं तो उतना ही टाइम दे. अननेसेसरली एक क्वेश्चन पर आप बहुत ज्यादा फोकस करके अपना टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, दूसरे क्वेश्चंस के लिए आप कम करते हो, उससे आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है एंड आपके जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट नहीं हो पाएंगे टाइम से. तो मेक श्योर आप डिविजन करें अपने 3 आवर्स की, और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके आप अपना काम करें, राइट? सो अगेन आपको बहुत ध्यान रखना है हर एक छोटी छोटी चीज का. और एक और चीज, इफ यू बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी, लाइक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, आपके एडमिट कार्ड पर उसके लिए यस लिखा हुआ है, तो रेस्ट एश्योर्ड जो भी आपको फैसिलिटीज, जो भी प्रोविजंस सीबीएसई की तरफ से परमिटेड है, सेंटर सुपरिटेंडेंट विल एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिजायर्ड एग्जेम्पशंस. आपको चिंता करने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. So kindly follow the instructions given by the invigilators. आपके invigilator आपको जो भी instructions देते हैं in the room, in the exam hall, आप उसको सुने, समझे, ध्यान से उसको follow करें. अपना रोल नंबर ध्यान से पढ़कर आप अपनी आंसर शीट में और अपनी अटेंडेंस शीट में फिल इन करेंगे. क्वेश्चन पेपर का सेट बहुत ध्यान से लिखेंगे आंसर बुक में एंड अटेंडेंस शीट में. उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए. रोल नंबर फिगर्स में और वर्ड्स में बिल्कुल वैसे ही लिखिए जैसा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है. आई हैव रेड इट, इट इज मेंशन इन करोड़, इन थाउजेंड्स, जो भी है, तो आपको वैसे ही लिखना है. एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करके नहीं लिखेंगे. सपोज माय रोल नंबर इज 201720, so I will not be writing in words like TW or 2 ZDR or 0.
नो, यू हैव टू राइट एज इट इज मेंशन ऑन योर एडमिट कार्ड। तो वहीं से आपको देख के लिखना है, तो कोई चिंता परेशानी की बात नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर गलती से भी आप मोबाइल कोई गैजेट अपने साथ नहीं लेकर जाएं। इफ यू आर कैरिंग सच काइंड्स ऑफ डिवाइसेस दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनफेयर मींस प्रैक्टिस एंड अकॉर्डिंगली एक्शन विल बी टेकन बाय द बोर्ड, राइट। तो आप ये सब चीजों को अवॉइड करें, नहीं लेकर जाएं, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, do not believe in the fake videos or the messages that are uploaded on social media। मैं ही बहुत दिनों से मैं खुद ही देख रही हूँ, कई बार क्या होता है, बहुत सारे इतने सारे चैनल आप सामने देख रहे हो, सीबीएसई ने ये एडवाइजरी शेयर किया है। तो इसमें भी क्या लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने सीबीएसई का लोगो, सीबीएसई का हैंडल यूज किया है, CBSE_news, CBSE_guide, CBSE library, CBSE result, CBSE world, पता नहीं क्या क्या, और सीबीएसई का लोगो यूज किया। दिस इज नॉट एट ऑल परमिटेड। और हम सब क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को पढ़कर इसको फॉलो करके समझते हैं कि दैट इंस्ट्रक्शन हैज बीन गिवन टू अस by CBSE, right? तो देखिए ये एडवाइजरी क्या कहता है, it has come to the notice of CBSE that following handles have been found to be using the name and the logo of CBSE with a view to mislead the general public on X, formerly Twitter, जो पहले Twitter था, now it is X। तो उसके ऊपर इतने सारे हैंडल्स लोगों ने बना रखे हैं। So it is hereby informed that appropriate action will be taken, right, against these social media handles। So the public is hereby cautioned, please make sure आप use करिए, follow करिए only CBSE का official account, that is @CBSE India 29, right। आप उसी को follow करेंगे, उसके अलावा आप किसी और handle को नहीं follow करेंगे। and CBSE will not be responsible thereafter। आप जो भी information इन सब handle से आप पढ़ के follow करते हो, समझते हो, तो CBSE का कोई उसमें रोल नहीं है, right। and another important thing, you should carry only blue pen, राइट। कोई ब्लू ब्लैक पेन नहीं यूज करेंगे, ब्लू हो, रॉयल ब्लू हो, बॉल पेन, जेल पेन, फाउंटेन पेन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो लिखने के लिए, आपकी स्पीड प्रॉपर बने, आपका ग्रिप बने, एंड हैंड राइटिंग शुड बी ब्यूटीफुल, इट शुड बी लेजिबल, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छी कैलीग्राफी में लिखे, कुछ ऐसा करिए, बट इट इज लेजिबल जरूर होना चाहिए। एंड इफ यू आर कैरिंग शार्पनर, स्केल, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप उसके लिए कोई फैंसी कोई ज्योमेट्री बॉक्स लेके नहीं जाने हैं आपको। आप अपना सारा जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यू विल बी कैरिंग इन अ ट्रांसपेरेंट पाउच, और मेक श्योर उसमें आपका एडमिट कार्ड हो, आई कार्ड आप पहन कर जाएंगे, राइट। वो ट्रांसपेरेंट पाउच जो है उसमें आप ये सारी थिंग्स लेकर जाएंगे। कोई इसके अलावा कोई और पेपर, कोई भी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए जो परमिटेड नहीं है एज पर सीबीएसई। और एक और चीज, इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, स्कूल्स के आप स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आप अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर ही जाएंगे, राइट। तो आप कोई कैजुअल ड्रेसेस पहनकर नहीं जाएंगे। एंड इफ यू आर अ प्राइवेट कैंडिडेट, वेयर ओनली लाइट क्लोथ्स, सिंपल सोबर क्लोथ्स, कोई फैंसी गॉडी फैंसी टाइप ड्रेसेस जो हैं पार्टी वेयर, वो नहीं पहनकर जाएंगे। और एक और चीज, आपकी जो शर्ट या टी शर्ट जो भी आप पहन रहे हैं, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई बिना मतलब का कोई लोगो, कोई स्लोगन्स, अननेसेसरली कोई रिलीजियस सिंबल्स नहीं होने चाहिए, राइट। हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो हम एग्जाम सेंटर में वो सब पहनकर नहीं जाना है, राइट। तो ये चीजों का आपको खास ख्याल रखना है, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाएं, right। And both regular and private candidates will appear only in the subject mentioned in the admit card, means कि आपके जो admit card में subjects mentioned है उन्हीं का ही आपका एग्जाम होगा। उसके अलावा ये नहीं कि आपकी कोई एडिटिंग करके या आपको अलग से कोई एक और एडमिट कार्ड मिलेगा कि आपने 5 एग्जाम अपियर हो रहे हो, 6 आपने और एक एडिशनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, उसका अलग से आपके पास एडमिट कार्ड आएगा। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी अदर एडमिट कार्ड। सो मेक श्योर आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली मेंशन हो। और अगर आपको लगता है एग्जाम टाइम पर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए देयर इज सम एम्बिग्विटी फाउंड इन द क्वेश्चन पेपर, रेस्ट एश्योर्ड द सेम विल बी एड्रेस्ड बाय सीबीएसई। आपको चिंता करने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड इवन इफ यू चेक इन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस आल्सो इट हैड बीन हैपनिंग, लाइक ऑल द एम्बिग्विटीज दे have been addressed properly by CBSE, right? And signatures, whether you are signing on your answer sheet, on your signature sheet, or maybe your admit card, that should be in running hand only, it is clearly mentioned। and आपके मम्मी पापा गार्डियन का सिग्नेचर एडमिट कार्ड पर होना चाहिए, प्रिंसिपल का सिग्नेचर और स्टैम्प प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। एंड द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल प्रिवेल ओवर
अदर वर्जन, बाकी वर्जन के साथ में इंग्लिश का जो वर्जन है वो आपके साथ अवेलेबल होगा. यू कैन रेफर टू इट. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने एडमिट कार्ड का एक जेरोक्स करा के, आप उसकी फोटोकॉपी करा के अपने पास जरूर रखें. राइट, मतलब खुदा ना खास्ता कुछ दिक्कत हो जाती है कई बार, तो आपके पास एक फोटोकॉपी जो है वो सेव अपने घर पर उसका रखिए, ओरिजिनल अपने साथ आप कैरी करेंगे. राइट, सो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी, द पब्लिक अलर्ट शेयर्ड बाय सीबीएसई. दिस इज अगेंस्ट द रूमर्स, द फेक इंफॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग एग्जाम्स. जो कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 12th के, 21 से स्टार्ट हो रहे हैं 10th के, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर, बहुत सारे चैनल्स पर अवेलेबल है. आप उस चीज से बचें. बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो इस चीज का दावा करते हैं, कभी वीडियो बनाकर शेयर कर देते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, सीबीएसई के पेपर लीक हो गए हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं, लेना चाहते हो तो मेक श्योर आप इतना अमाउंट दे दीजिए. प्लीज आप इन चीजों से बचें, ऐसा कुछ भी नहीं है. सीबीएसई has made elaborate arrangements for smooth and fair conduct of the examination. So आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर पढ़कर उसके ऊपर बिलीव नहीं करें, किसी को भी अपना इस तरीके से पैसा ना दे, और ना ही इस चीज का हिस्सा बने कि आप भी उस चीज को आगे और शेयर करना शुरू कर दो अपने फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटी, अपने नेबरहुड में कि हाँ जी ये यहाँ से पेपर मिल रहा है, लेने. कोई नहीं है ऐसे आपको जो है मिसलीड किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है. आप उस चीज से बचें, इसका हिस्सा नहीं बने. अगर आप भी इस चीज का हिस्सा बनेंगे, उस चीज को आगे और प्रमोट करेंगे थ्रू सोशल मीडिया, सो इसके अंतर्गत आप पर भी एक्शन लिया जा सकता है अंडर आईपीसी और मे बी आईटी एक्ट. तो पेरेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को समझाएं कि इन सब रिमूवर्स पर ना वो बिलीव करें, ना उनके बच्चे बिलीव करें. इन सब चीजों में, इन सब प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना हो. राइट, और आने वाले जो एग्जाम हैं बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली जो कंडक्ट किए जा सकें. अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास कोई भेजता है, राइट, कि मेरे पास पेपर अवेलेबल है, ये लीक हो गया है, आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे, इवन वो पेपर के कोई फेक पेपर बनाकर उसके लिंक भी भेज देते हैं. राइट, और इस चीज की गारंटी देते हैं कि इन सभी सैंपल पेपर में से ही क्वेश्चंस आएंगे, कि ये 2-4 सैंपल पेपर कर लो. इन चीजों पर बिलीव नहीं करें. अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता है, मेक श्योर you inform CBSE at the email ID info.cbseexam@cbseshiksha.in. आप इस email ID पर तुरंत जो है वो अप्रोच करें. Right, so all my lovely students, my teachers, I first of all thank you for watching this channel, and even for your commitment for education, for the upcoming examination, whatever you have prepared for. I wish you all the very best. And my lovely students, make sure you take care of all these things. And today's very important occasion, 14th February, so Valentine's Day, and a lot of love from me to all of you, and the best wishes as well. Thank you. Have a nice day.